Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and once again we met with the our subject discussions, which is the basics of industrial engineering. And in the previous series of the lecture, we discussed the basic things about the industrial engineering, right? I hope you all recall the things which is discussed in the previous series of the lectures. In the previous series of the lecture, we discussed the basic things about the site selections, right? What are the important factors which should be considered or during the site selections? What are the basic difference of the selections of the factor which is affecting during the site selections? What are the advantages of the rural area selections or the rural location selections? What are the advantages of the urban area location selections? These are the points which is discussed in the previous series of the lectures. So after the land selections, right, if you acquire the perfect land for your product, now the process which is starts with the other discussions points which is about the plant layout. Suppose you choose the location. Suppose you wants to manufacture the certain kinds of the bolt, right? You want the certain kind of the bolts in your industries, and you the acquire the huge land for the establishing the plant for the various kinds of the bolt manufacturing unit. You acquire the lands. Now your product which is to be kindly fixed, you want to only manufacturing the different kind of the bolts, which is either it is acme bolts or different alag alag that kind of the british standards bolts or the different kind of the bolts, right? But now uh, you decide everything based on your product about your lands, the market which is nearby, the available market which is very close to the nearby, which is your the manufacturing location. So that's why now it is most critical stage or the most deciding factors about the plant layouts, right? Which are the factor which is affecting in the plant layout, which kind of the layout you have to chosen for your product, and which kind of the layout which is helpful, and which kind of the arrangement in your plant you should fixed for your product. So these are the basic things which you should consider during the plant layout. So we start the discussions with the objective of the plant layout. So we start the discussions on the importance of the plant layout, factors which is affecting during the plant layouts, and the various principle of the plant layouts. In the today's lecture, we try to discuss the three basic things about the definitions, about the factors, and about the principle, various principles of the plant layouts. In next day's lecture, we discuss about the various types of the plant layout. So let's start the discussions over the plant layout. So let's start the plant facility layout. The plant layout is ideally, इसको हम लोग प्लांट लेआउट भी बोल सकते हैं, फैसिलिटी लेआउट भी बोल सकते हैं. अब उसको डिफाइन कैसे करें? तो प्लांट लेआउट इज आइडियली इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ द स्पेसेस. आपके पास जो है वो स्पेस जो अवेलेबल है उसका एलोकेशन कैसे करें, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स इन सच अ मैनर दैट द ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड. यानी प्लांट लेआउट जो है वो आपके लिए दो चीज़ के साथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करके आता है. एक तो आपके पास जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर आपके जो इक्विपमेंट्स लगने वाले उस इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे करें, बाकी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटी एलोकेशन, आपके पास जितनी भी लैंड है उसका एलोकेशन कैसे करें, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, जो एकदम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ज़्यादा स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम उस स्पेस को यूटिलाइज करके आपका कोस्ट जो ऑपरेटिंग कोस्ट लगने वाला है वो ऑपरेटिंग कोस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज उसको कर सकते हैं, वो चीज़ जो है वो हमें प्लांट लेआउट के थ्रू स्टडी करने को मिलता है.
The plant layout is referred to the arrangement of the physical facilities such as the machineries, equipments, furnitures, etc. with in the factory building in such a manner that so as we have the quickest flow of the material at the lowest cost with the least amount of the handling of the processing. आपको इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाहिए जिस तरीके से वो एकदम क्विकली जो है उस मटेरियल का फ्लो वहाँ पे हो सके और उसके पीछे जो है वो आपका हैंडलिंग प्रोसेसेस जो है वो कम से कम हैंडलिंग प्रोसेस आपका कम से कम हो, राइट? इस तरीके से उस मटेरियल को फ्लो करना चाहिए। जैसे प्रोसेस वन से उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ तो जैसे वो लास्ट में उसका प्रोसेसिंग ख़त्म होगा तो उस जो उसका जो मूवमेंट है, राइट, उसका जो प्रोसेसिंग मूवमेंट है वो इतना स्मूथली, इतना क्विकेस्ट, इतना फास्ट होना चाहिए और इसमें कम से कम उसका हैंडलिंग जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से इस the product form and receipt of the materials to the shipments of the finished product. So this is all about the plant layouts. What are the features of the plant layout? Plant layout के अंदर क्या features होने चाहिए? The ease of working, एक तरीके से हम लोग easily इसके ऊपर वर्क कर पाए। The maximum safety the plant is should be give to the employees and a minimum health hazard for the people who is working in the plant. तो ऐसा प्लांट जो है वो बेसिकली होना चाहिए जिसके अंदर 3 बेसिक फीचर्स होना चाहिए कि वर्किंग जो है वो एज ऑफ वर्किंग होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए। सेकंड चीज़, मैक्सिमम सेफ्टी जो है उनके एम्प्लॉयड को उसके जो एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम सेफ्टी सॉरी प्रोवाइड कर सके वैसा होना चाहिए और मिनिमम हेल्थ हैजार्डियस जो है वो होना चाहिए। इसमें कम से कम जो है उन एम्प्लॉय का जो है वो हेल्थ इश्यूज कम से कम डेवलप्ड हो ऐसा होना चाहिए। द मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स, कम से कम उसका मटेरियल्स जो है वो हैंडल होना चाहिए। मिनिमम हैंडलिंग वहाँ पे हो ऐसा आप डिज़ाइन कर सकें, जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। विच इज़ रिड्यूस्ड दी कॉग्निशंस ऑफ द मटेरियल्स एंड मशीनरीज एंड द मैन। तीनों एम जो है आपका मशीन्स हो गया, मटेरियल्स हो गया और मैन हो गया। तीनों का एक तरीके से जो उसके बीच जो है वो टकराव हो, वो कम से कम टकराव हो, इस तरीके से प्लांट लेआउट जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। देन द मिनिमम डैमेज एंड द स्पॉइलेज ऑफ द मटेरियल जो है वो इस तरीके से आपको स्मूथली फ्लो करना चाहिए। इसका यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए प्लांट के अंदर जो कम से कम उसका जो है वो वेस्टेज हो, कम से कम मटेरियल जो डैमेज हो, उसका स्पॉइलेज जो है वो निकलते हैं वो कम से कम इसका स्पॉइलेज हो, इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए। द फ्लेक्सिबिलिटी विद द रिगार्ड्स टू चेंज इन द प्रोडक्शन कंडीशन, ऐसी इसके अंदर इस प्लांट के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि सपोज आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, तो इसको आप इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। इतना जो है वो प्लांट जो है वो मेरे हिसाब से जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना फीचर्स जो है वो होने चाहिए। तो हमने क्या क्या इसके फीचर्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। एक पहला फीचर्स ये कि एक तरीके से इसके अंदर इजीली वर्क हो सके, मैक्सिमम हेल्थ मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, मैक्सिमम जो है इसके अंदर हेल्थ हैजार्डियस क्रिएट हो ऐसा होना चाहिए, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए। फोर्थ विच इज़ दी जो कंजक्शंस होता है तीनों के बीच, मैन, मटेरियल और मशीन के बीच, वो कम से कम होना चाहिए। मिनिमम डैमेज होना चाहिए और वेस्टेज होना चाहिए मटेरियल्स का। और लास्ट विच इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि प्लांट आप फ्यूचर के प्रोडक्शन कंडीशन के आधार पे उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने की इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इतने फीचर्स जो है आपके प्लांट के लेआउट में होने चाहिए। अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे at the time of the plant layouts, right? The factor 1 which is the product locations and the building. Second, the nature of the product, कौन किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है, वो केमिकल प्रोडक्ट है, कोई मशीन प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से वो आप सबको देखना पड़ेगा।
प्लांट का एनवायरनमेंट्स क्या है, किस एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट जो है वो वर्क कर रहा है। अब ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पे आपका प्लांट है, ज़्यादा हॉट प्लेसेस के आपके ऊपर आपका प्लांट है, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। देन द स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी वहाँ पे क्रिएट होती है। देन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आता है, वो सारे अगर आता है तो फिर इजीली जो है वो ऑपरेटेबल है या ऑपरेटेबल नहीं है, वो चीज़ जो है वो इस फैक्टर्स जो है वो सारे अफेक्ट करते हैं। देन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द प्लांट लेआउट, राइट। देन द ह्यूमन नीड्स, इजीली जो है वो मैन पावर्स जो है अवेलेबल है कि नहीं है। देन द टाइप्स ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स विच इज़ टू बी इन्वॉल्व इन योर प्लांट, किस तरीके के हैवी मशीन्स और लाइट ड्यूटी मशीन्स और मीडियम ड्यूटी मशीन्स आपके प्लांट के अंदर लगने वाले हैं, वो आपको पहले तय करना पड़ेगा। एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपकी किस तरीके की प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इस प्रोडक्ट के लिए रहने वाली है, इस हिसाब से इतने सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट जो है वो कर सकते हैं फॉर दी प्लांट लेआउट। जब आप प्लांट लेआउट डिसाइड करोगे तो इतने सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्टिंग्स रहते हैं। So now the factor affectings for the plant layout, the factory building, the nature and the size of the building which is determined the floor spaces which is available for the layout. While designing the special requirements like the air conditionings, dust controls, the humidity control, etc., must keep in the minds the locations of the plant which is the greatly influence the layout of the plant. The topography, space, shape, climate conditions and the size of the sited selections will influence the general agreements of the layouts and the flow of the work in and out in the building. Then the nature of the product, the productions of the heavy and the bulky items, बहुत बड़ा और heavy कोई product आप बना रहे हैं, which is need the different kind of the layouts as compared to the smalls and the light items. Similarly, the product with the complex and the dangerous operations would be require the isolations instead of the integrations of the process. देन द प्लांट एनवायरमेंट्स, ज़्यादा हीट है जैसे मैंने आपके बात करी, ज़्यादा नॉइजी है, वेंटिलेशंस है कि नहीं है। देन द थर्ड पॉइंट, ज़्यादा द फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में उस टाइम पे होना चाहिए जब उसका आप डिज़ाइन कर रहे हो। देन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, व्हाट इज़ अबाउट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस? So about the repair and maintenance, I would like to say that the machine should be so arranged that the adequate space is available between the movements of the equipment. इतना adequate space में मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए कि जब उसको easily रिपेयर या मेंटेन करना हो, इसको हैंडल करना हो तो easily हैंडल हो सके, इतना होना चाहिए। Then what is about the management policies? A various managerial policies which is related to the future volume of the productions and the expansions. मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपांशन करना है, इस प्लांट का एक्सपांशन करना है, राइट, प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सपांड करना है, तो इसके लिए क्या प्रोडक्शन पॉलिसीज है, द साइज ऑफ द प्लांट क्या है। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कुछ सोचा है कि फ्यूचर में अगर ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग एक्सपांशन करें तो मैनेजमेंट इसके लिए रेडी है, तो इस हिसाब से आपको उसको प्लान करना चाहिए। द इंटीग्रेशंस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड द फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज, सेल्स एंड मार्केटिंग पॉलिसीज, परचेज पॉलिसीज एक्सेट्रा। देन द ह्यूमन नीड्स, द एडिक्वेट एग्रीमेंट्स should be made for the clock room, washrooms, lockers, drinking waters, toilets and other employees facilities. A proper provision should be made for the disposables of the influence. तो ह्यूमन नीड्स यानी आदमी को वहाँ काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है ना, कि उनके लिए क्लॉक रूम होना चाहिए, चेंज रूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, लॉकर्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो इन्फ्लुएंट डेवलप करती है, जो केमिकल हैज़ार्ड्स सपोज कुछ ऐसे डेवलप कर रही है, तो वो ईजिली डिस्पोजेबल हो, ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो ह्यूमन काइंड्स को डैमेज ना करें। देन द टाइप्स ऑफ मशीनरीज, सो द जनरल पर्पजेज machines are often arranged as per the process layout, right, with a special purpose machines are arranged according to the product layout. आपके जो जनरल पर्पसेस मशीन्स रहते हैं वो प्रोसेस लेआउट के हिसाब से वो अरेंज होते हैं, और आपके स्पेशल पर्पसेस मशीन्स हैं वो प्रोडक्ट लेआउट के हिसाब से वो अरेंज
होते हैं. देन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन द असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, जैसे असेंबली लाइन जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, द प्रोडक्ट लेआउट इज बेटर, प्रोडक्ट लेआउट वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहता है. इन जॉब और ऑर्डर और द interminutes of the manufacturings on the other hand the process layout is desirable, वहाँ पे प्रोसेस लेआउट जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल्स है. सो नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट के जो है वो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. तो प्लांट लेआउट के ये जो है वो बेसिक्स 8 प्रिंसिपल्स है. द प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोर स्पेस, प्रिंसिपल ऑफ द सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, principle of the interdependency, principle of the overall integrations and a minimum investment. इतने principles जो है वो study होते हैं. तो इतने प्रिंसिपल जो है वो प्लांट लेआउट के अंदर लगते हैं और इस हिसाब से आपको इसको वर्कआउट करना पड़ेगा. सो वी स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट लेआउट with the first principle, which is the principle of the minimum movements. As far as possible the materials and the labor should be moved over a minimum distance. इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहिए कि मटेरियल्स और मशीन को कम से कम जो है वो मूवमेंट्स करना पड़े, राइट. सो सेकेंड प्रिंसिपल विच इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लो. द वर्क areas should be arranged according to the sequence of the operations. आपके वर्क एरियाज जो है वो प्रोडक्ट के जो वर्क सीक्वेंसेस है उस हिसाब से जो है वो बनाने चाहिए, सो दैट देयर इज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द मटेरियल्स. तो वहाँ पे मटेरियल्स का कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए विदाउट द कंजक्शंस. द लेआउट शुड बी अलाउड फॉर अ ईजी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स विदाउट द इंटरप्शंस और डिले. ऐसा लेआउट होगा तो मटेरियल को हम लोग ईजिली मूवमेंट करवा पाएंगे, मटेरियल को मूवमेंट करवा पाएंगे विदाउट द इंटरप्शंस एंड द डिले, राइट. किसी तरीके से वहाँ पे जो है किसी तरीके का डिले नहीं होगा, इंटरप्शंस क्रिएट नहीं होगी. इंटरप्शंस क्रिएट नहीं होगा तो ईजिली हम लोग इस तरीके से वर्क जो है वो कर पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लो. देन द थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेस. प्रिंसिपल ऑफ स्पेस के अंदर क्या होता है, ऑल अवेलेबल क्यूबिक स्पेस शुड बी इफेक्टिवली यूज्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ऐसा क्यूबिक स्पेस जो है वो यूज़ करना चाहिए कि आप उसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो वर्क स्पेस आप जो है वो यूटिलाइज कर सको, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए. The fourth principle, which is about the principle of the safety, principle of safety. There should be a considerations for the safeties and the convenience of the worker. एक considerations होना चाहिए सेफ्टी के लिए और एक जो है वो वर्कर के कन्वीनियंसेस के लिए कि वो वहाँ पे इजीली वर्क कर पाए. There should be a built in the provisions for the safeties and the comforts. कि वो जो है वो एक प्रोविजंस होना चाहिए कि सेफ्टी और कंफर्ट के साथ जो है वो वहाँ पे वर्क कर पाए. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्लांट लेआउट. नाउ प्लांट लेआउट के अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर जो आपका पांचवा प्रिंसिपल्स है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज. तो द लेआउट should be designed in the manner that the production facility can easily be arranged when it become necessary in the futures on the account of the expansions and the technological enhancements or advancement. तो इस तरीके से लेआउट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई रीअरेंजमेंट करनी है, फ्यूचर में आप उसका प्लांट का एक्सपांशंस करना है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना है, जैसे आपके पास पहले
पुराने वाले मशीनिंग्स थे जैसे लेथ मशीन्स, अब आपको नए वाले सीएनसी मशीन्स, लेथ मशीन लगाने, मिलिंग मशीन्स लगाने, तो ऐसा कुछ एडवांसमेंट करना है तो उस एडवांसमेंट आप कर सकें उतनी प्लांट लेआउट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप जो है वो इजीली इस तरीके के चेंजेस जो है वो आपके लेआउट के अंदर करके फ्यूचर में कुछ एक्सपांशन करके रीअरेंजमेंट करके इस प्लांट को रीयूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं. Is it clear? Next, which is the principle of the interdependency. The interdependent operations and the processes should be located in the close to the proximities to the each others. ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आप जितना हो सके उतना नज़दीक जो है वो एक दोनों से आप डिज़ाइन करिए कि वहाँ पे इजीली उसको इंटरचेंज कर सकें. देन द प्रिंसिपल ऑफ द ओवरऑल इंटीग्रेशंस, आपका प्लांट के अंदर ओवरऑल इंटीग्रेशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा. ऑल द प्लांट फैसिलिटीज़ एंड द सर्विस शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट. So, maximize efficiency and the minimum cost of the production is to be generated. इससे आप जो है वो मिनिमम कोस्ट, आपका प्रोडक्शन के पीछे जो कोस्ट लगेगा वो मिनिमम कोस्ट लगेगा और आप मैक्सिमम इफ़िशेंसी से प्लांट को जो है वो रन कर पाएंगे. मैक्सिमम आपको इफ़िशेंसी मिलेगी जो भी आपका सारे एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट जो है वो अगर इंटरकनेक्टेड्स रहेंगे, इंटीग्रेशंस में रहेंगे तो ओवरऑल आपकी इफ़िशेंसी ऑफ द प्रोडक्शंस है जो वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगी और द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस है विच इज़ टोटली टू बी मिनिमाइज्ड. एंड द लास्ट प्रिंसिपल विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट. What is that principle is wants to say that this principle is wants to say that is like that the layout should be is yield savings in the fixed capital investment through optimum utilizations of the available facilities. आपके पास जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसको आपको किसी न किसी तरीके से कैसे भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके इस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के अंदर लगे और हमको प्लांट को ऑपरेट करने में कम से कम जो है वो कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके. ऐसा आपका डिज़ाइन जो है वो होना चाहिए. तो ये प्रिंसिपल के ऊपर आपका प्लांट लेआउट, ये 8 जो प्रिंसिपल हमने स्टडी किए उस 8 प्रिंसिपल के ऊपर आपका प्लांट जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए. इस तरीके से अगर इस तरीके से आप प्लांट का डिज़ाइन करोगे तो ये प्लांट जो है वो डेफिनेटली एक सर्टेन काइंड ऑफ द ऑप्टिमाइजेशंस के साथ जो है वो काम करेगा और इसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्लांट लेआउट के बारे में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है. प्लांट लेआउट क्या चीज़ होती है, कैसे उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है और उसी डेफिनेशन के साथ उसके इंट्रोडक्शंस के साथ, प्लांट लेआउट के इंट्रोडक्शन के साथ हमने और चीज़ जो आज स्टडी करने की कोशिश की कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्लांट लेआउट के अंदर जो है वो हमें अफेक्ट्स करते हैं. और उसके बाद जो है हमने वेरियस जो है वो प्रिंसिपल्स जो है 8 प्रिंसिपल जो है उसको स्टडी करने की कोशिश की है आज के लेक्चर के अंदर. कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेआउट जो है वो स्टडी कर पाए. जैसे आपका प्रोसेस लेआउट हो गया, प्रोडक्ट लेआउट हो गया, फिक्स लेआउट हो गया, राइट, कंबाइंड लेआउट्स हो गया. तो ऐसे जो है वो 4 टाइप के लेआउट से उस लेआउट को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे. सो आज के लेक्चर के अंदर अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. If you have certain kind of the query, you can ask me in the personally also. So thank you so much for watching.